नमस्कार, my students, welcome to all of you in the today's session of SST, in which again we are here to discuss about the changing earth, class 7. I am very hopeful that this one is my third consecutive session by which I am here to explain the important fact with related to the chapter The Changing Earth. After having the discussion about the formation of earth, formation of continent, responsible for the formation of continent, it means none other than tectonic plates. Today we will study about the volcanoes. But before starting the volcano, we have to understand that the tectonic plates are completely responsible for the movement of the continental crust, because after separation, after having cracks in the supercontinent which was none other than Pangaea, the plates starts moving here and there on the surface of the earth. It means not on the surface of the earth. Actually, the plates were floating over the mantle region or middle layer of the earth, because I told you earlier that the middle layer or mantle is also present in the liquid condition. तो जिस प्रकार से पानी के ऊपर अगर आप कोई बर्तन धोने वाला फोम रख देंगे, then you will feel that that will never going to be dipped. Actually, that will float over the water. And just like that, the oceanic, the continental plates or tectonic plates are floating over the water mantle, and this one causes the formation of continent, 7 continents. Definitely you are knowing. I explained earlier also. And if you have to study about the continent, formation of continent, globe, longitude, latitude, a part of my video available on Nath online classes, you can subscribe my another channel Rishi the Creator, RISHITHECREATUR. आप उस पर भी जाकर यह जो ज्ञानवर्धक चीजें हैं उसको समझ सकते हैं, उससे रूबरू हो सकते हैं, तो आप इन चीजों को आसानी से समझें. I told you earlier that if this one is 2 plates, might be possible that the heavier plate is lower in position with respect to another lighter plate, and whenever they will strike each other, the heavier plate will move inside and it will just try to push it, the lighter tectonic plates, and due to that the mountain region like the formation of Himalaya took place. हिमालय की उत्पत्ति का आधार यही था कि भारी जो टेक्टोनिक प्लेट था ये जैसे है, तो ये हल्का वाला जो था वो ऊपर था, भारी वाला नीचे भारत के तरफ से आया और ये स्ट्राइक किया साउथ एशिया को. अब इसके कारण ये ऊपर हो गया और भारी वाला अंदर घुसा, और जिसके कारण की हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ. यह चीज आप जानते. अभी आपको जानकारी नहीं होगी, फिर बोलता हूँ ऋषि द क्रिएटर को सब्सक्राइब करो, उसको सुनो, समझो, बहुत चीज समझने के लिए मिलेगा. You will get a knowledge to explain lot of things in front of your parents, guardian, teachers or your senior. घर में जो बड़े हैं उनको भी आप ज्ञान दे सकते हैं. भाई अभी आपको जानकारी नहीं होगी, अभी तक आप क्या जान रहे हैं? 7 कॉन्टिनेंट, यही जान रहे हैं ना. आने वाली कुछ पीढ़ियों के बाद 8th कॉन्टिनेंट का भी फॉर्मेशन हो रहा. कारण जिस
प्लेट पर ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे न्यूजीलैंड है, वहां क्रैक्स आ रहे हैं, क्रैक्स शुरू हो गए, हलचल जारी है जमीन के अंदर, वहां पर हलचल जारी है, एंड इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीशन ऑफ द क्रैक इनटू सेपरेशन ऑफ दैट प्लेट इनटू टू पार्ट्स, एंड व्हेनेवर इट विल हैपन, it means afterward we can say that we are not having the knowledge about information about 7 continents, we are having 8 continents, और यह प्रक्रिया जारी है। आप इस चीज को कहीं भी किसी से भी पूछ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो प्लेट है, जिस प्लेट पर ऑस्ट्रेलिया है, वह 2 भागों में बट रहा है। नियर बाय द ब्रेक ऑफ द प्लेट इज टेकिंग प्लेस नियर बाय न्यूजीलैंड, और यह भी साक्ष्य मिला है कि जो न्यूजीलैंड का जोन है, जो टेक्टोनिक प्लेट है, वह वाकई में एक समृद्ध है। हाँ, छोटा इसलिए है चूंकि वो समुद्र के अंदर, बट इफ पुशिंग इट, मतलब उसको अगर ढकेलने का, प्लेट में हलचल होता है और अगर वो ऊपर की ओर निकलता है, तो माइट बी पॉसिबल दैट इन द फ्यूचर वी विल सी अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड विच विल बी कंसिडर्ड एज अ न्यू कॉन्टिनेंट, वो हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। चलिए, यहाँ तक की जानकारी हुई। अब वोल्केनो के बारे में आते हैं। वोल्केनो है क्या? वोल्केनो है बहुत ही आसान चीज़ है। वोल्केनो मीन्स वह जगह जहाँ से पृथ्वी के अंदर जो मेंटल में हीट ड्यू टू एक्सेसिव टेम्परेचर, वॉट एवर द लिक्विड मटेरियल्स ड्यू टू हैविंग ग्रेट प्रेशर, लॉट ऑफ प्रेशर, वो जो बाहर निकलता है जिस जगह से, उस जगह को वोल्केनो कहते हैं। एक लाइन में सरल भाषा में कि जमीन के अंदर से लावा काफ़ी अधिक तापमान और दबाव बढ़ जाने के बाद पृथ्वी के जिस भूभाग से निकलता है, सामान्यतः उसी भौगोलिक बनावट को वोल्केनो कहा जाता है। वेरी सिंपल। अब सवाल आता है कि वोल्केनोज के टाइप क्या? एक्टिव वोल्केनोज। एक्टिव वोल्केनोज मीन्स सच काइंड ऑफ वोल्केनोज जिससे कि लावा निकला है और जो अभी भी जागृत है, मतलब जिससे लावा निकलेगा। इट मीन्स ऐसा नहीं होता है कि उससे लगातार लावा निकलता रहता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक थ्योरी, जो साइंटिस्ट होते हैं, जियोलॉजिस्ट होते हैं, उनको जानकारी होती है कि भाई इससे कभी भी लावा निकल सकता है, और जो इस तरह के वोल्केनोज होते हैं जिससे रिजन ऑफ लावा, मैग्मा कभी भी निकले, दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज एक्टिव वोल्केनो। फॉर एन एग्जाम्पल, इटली में माउंट एटना एक जगह है, माउंट एटना, एमपी एटना is a place in Italy where active volcanoes are present, active volcano is present, and with Etna, Italy, one active volcano is also present in our country, and that is known as volcano in the Barren Island. अंडमान एंड निकोबार में एक बैरन द्वीप है, और भारत में बैरन द्वीप में भी एक जागृत ज्वालामुखी है। जागृत ज्वालामुखी मतलब एक्टिव वोल्केनो, इस चीज़ को आपको याद रखना। सेकेंड वन टाइप होता है डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनो मतलब भाई एक बार तो हुआ, लेकिन फिर काफ़ी 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 समय तक जो है उसमें कोई हलचल नहीं हुई। दे आर ऑल्सो नोन एज स्लीपिंग वोल्केनोज। नहीं होता है कुंभकर्ण एक बार उठा खाया फिर शांत, शांत है मतलब सोया हुआ। सो सच काइंड ऑफ वोल्केनोज आर गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज डोरमेंट वोल्केनो। एक इटली में माउंट वेसुवियस, इटली में माउंट वेसुवियस एक वोल्केनो है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज डोरमेंट वोल्केनो। अब तीसरा आता है एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्सटिंक्ट वोल्केनो का मतलब दे आर इनएक्टिव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर and there is no possibility of any eruption in future, मतलब जो वर्षों से शांत भी है और आगे भी कोई हलचल होने का उम्मीद नहीं। That will be known as dead volcano और extinct volcano। जैसे किलीमंजारो इन ईस्ट अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका में एक वोल्केनो है किलीमंजारो पर्वत, दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज डोरमेंट वोल्केनो और डेड वोल्केनो। याद रखना। क्रेटर लेक एक लेक बन गया है, ओरेगोन द यूएसए में, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डोरमेंट वोल्केनो। And now the most important thing that sir, continuously you are discussing about volcanoes, types of volcanoes, property of volcanoes, function of volcanoes. Sir, कहाँ है
वोल्केनो सामान्यतः कहाँ है? तो यूजुअली जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, तो प्रशांत महासागर का एक क्षेत्र किधर से किधर आप मानो, एशिया के पूर्व और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम। एम आई राइट? इफ यू आर हैविंग मैप, you can easily see that the region behind the eastern part of the Asia and western part of North America continent and South America continent is going to be considered as Pacific Ocean. और प्रशांत महासागर जहाँ है, और ये जो इलाके हैं भूमि वाले इलाके, वो किनारे जो उसका किनारा हुआ, वो चारों तरफ, मतलब भूमि के किनारे के समीप चारों तरफ को अगर हम लोग मिलाते हैं तो एक माला जैसी, एक लॉकेट जैसा, एक चेन जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। एंड दैट रीजन इज हैविंग द प्रेजेंस ऑफ वोल्केनोज इनसाइड द अर्थ, ऑल्सो समुद्र तल के नीचे भी है। एंड दैट काउजेस समटाइम्स सीवियर अर्थक्वेक, सुनामी एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। एंड दैट चेन इज नोन एज रिंग ऑफ फायर्स। दैट चेन इज नोन एज, जो प्रशांत महासागर के तटीय इलाके हैं, जो समुद्री प्रशांत महासागर के जो किनारे के ज़मीनी इलाके हैं, उनको जब हम सभी को मिलाते हैं दोनों महादेशों के, तो एक मालाकार आकृति का निर्माण होता है, उसी को रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। एंड दैट्स द जोन इन विच लॉट्स ऑफ वॉल्केनोज आर प्रेजेंट। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो पहला हुआ कि द circum-Pacific belt, and that belt is known as ring of fire. The term used for that diagram is known as ring of fire, and in technical term that is going to be considered as the circum-Pacific belt. पहला वो हो गया। and दूसरा the mid-continental belt। दूसरा क्या हो गया? the mid-continental belt, मतलब मेडिटेरियन सी के आसपास। अब इसी चीज़ को फुलफिल करता है तुम्हारा इटली वगैरह वाला, अफ्रीका वगैरह, किलिमंजारो वगैरह, कि मेडिटेरियन सी के भी आसपास जो है एक्टिव वोल्केनोज हैं या पहले एक्टिव वोल्केनोज हुए हैं। सो दीज आर द टू बेल्ट्स इन विच वोल्केनोज और द प्रेजेंस ऑफ वोल्केनोज आर फाउंड। यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। एंड एक कॉमन सी चीज़ होती है कि जब कभी वोल्केनो ब्रस्ट होता है, निकलता है, लावा और मैग्मा निकलते हैं, तो स्वाभाविक तौर पे सिर्फ लिक्विड ही नहीं निकलता है, उसके साथ धुएं का गुब्बार निकलता है, काफ़ी धुआं, स्मोक। एंड ड्यू टू दैट आप कभी कभी न्यूज में सुनेंगे कि पार्टिकुलर जगह ड्यू टू वोल्केनो ब्रस्ट व्हाट इज़ हैपनिंग, कि भाई फ्लाइट वगैरह उड़ना बंद कर दिया गया है। क्यों? चूँकि विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। एक बार तो वोल्केनो से लावा निकलने के कारण 3 दिनों तक, कंटिन्यूसली 3 दिनों तक आसमान में धुआं ही धुआं था, डायरेक्ट सन की विजिबिलिटी नहीं हो पाई थी। दिस वन शोज द पोटेंशियल ऑफ वोल्केनो, कि भाई वो धरती से कितना अधिक मैग्मा और हीट, टेम्परेचर, डस्ट के फॉर्म में, भाप के फॉर्म में लेकर निकलता है। सो दिस वन इज द जर्नी रिगार्डिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ वोल्केनो, प्रेजेंस ऑफ वोल्केनो, टाइप्स ऑफ वोल्केनो, places where volcanoes are found. In next topic we will discuss about the earth. Thank you. Have a great day.